Good afternoon. Today we will see the next traversing technique, that is post order algorithm. Before this we have seen tree traversal representation of a tree. In that we have seen array, that is static representation, and dynamic representation. We have used array and then we have used linked list. Each is each method is having its own advantages and disadvantages and working structure. After it, we have seen tree traversal. In tree traversal, what we do, we visit all that each nodes of a tree exactly once, not repeatable. Okay, only single time we visit the each node of a tree only once, and for what? Just to take the information. We are not doing any active action on it. Depending on the path or the nodes, how we visit each node, it is decided that the type of the traversing technique, that is whether it is pre-order, in order, or post order. In pre-order, we used to visit data, then left, and then right. We have to write down small algorithm and the function for the pre-order. If the question is asked for 2 or 4 marks also, then we have seen in order algorithm. In this we visit the left node first, then the data, that is you can say parent node, and then the right node. Similar, in this you have to follow the same step, write down algorithm and function. Today we will see post order algorithm, that is I will show you image, but you have to visit the left child first, then right child, and then data. So your shortcut or the key to remember the post order algorithm, it will be LRD, that is left, right, and data. You will traverse the left subtree in a post order, then you will traverse the right subtree in post order, then at the end you will visit the root node. मतलब क्या करोगे आप, सबसे पहले लेफ्ट साइड पे जाओगे, देन राइट साइड पे, एंड देन रूट नोड. ओके, सो consider the given tree. A is the parent node, but A is what? Root node, because it don't have any parent above it. बराबर है. Then at the right hand side there is a B, sorry, left hand side there is a B. So left subchild is a B. B is having parent as a and B is having one child, that is on a left hand side D. A is having right hand side child, that is C. ट्री का कंसेप्ट भी थोड़ा सा क्लियर हो गया और ट्री भी सामने है. नाउ हाउ वी विजिट, traverse the left subtree, then traverse the right subtree, and at the end root node is there. So very first consider the leftmost node. Which is the leftmost node? It is the D. So write down D. Then what you will do, L R D. R, is D is having any right child? No. Then at the end D means data. Is D is having data? Yes, that is B. So DB. Now recursively we will go upside. L left already covered, R there is no R, and then data, R R D. Then what to do, R R पे राइट साइड पे कौन है? C है. So DBC, and at the end now go on to the top, that is A, which is a root node. So LRD, that is the data element. लेफ्ट साइड पूरी कवर हो चुकी, राइट साइड पूरी कवर हो चुकी, एंड एट द एंड root node is there, that is the A. So the answer will be DBCA.
अल्गोरिदम फॉर इट क्या है, पोस्ट ऑर्डर ट्री का पॉइंटर पॉइंट कर रहा है लेफ्ट साइड पे, पोस्ट ऑर्डर ट्री का पॉइंटर पॉइंट करेगा राइट साइड पे. सो एल आर एंड आफ्टर दैट राइट डाउन 3 डेटा. लास्ट में क्या लिखना है हम लोग को, डेटा लिखना है. अगर फंक्शन हम लोग कंसिडर करते हैं तो क्या करना है, पी टी आर टेम्प इक्वल टू रूट एंड टेम्प इज नॉट इक्वल टू नल. वापस से हम लोग कंडीशन चेक करेंगे, पूरा ट्री घूम के आना है. आने के लिए ट्री रहना भी चाहिए, नल भी नहीं होना चाहिए. सो बेटर वी विल check pre-check the we will use the pre-check condition, that is if temp is not equal to null, मतलब temp null नहीं है तो क्या कर लेंगे, पोस्ट ऑर्डर में temp का लेफ्ट में जाओ, that is the L, then पोस्ट ऑर्डर temp pointing to the R, that is the right, means R हो गया, एंड लास्ट में printf temp का डेटा मतलब LRD. ये हुआ आपका पोस्ट ऑर्डर फंक्शन. सिंपल है, in order, pre-order and post-order. Now in a book there are 2 or 3 more example which you have to see on your own. Consider it as your homework. Now we will go to the next concept, that is the expression tree. What do you mean by expression tree? Binary tree are widely used to store algebraic expression. जो algebraic equation रहते हैं, आपको मालूम है algebraic equation मतलब कौन से, a प्लस बी एक्स प्लस वाई फॉर्मेट के. आपने अलजेब्रा पढ़ा है अभी तक, या फिर अभी भी शायद आपको फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर में रहेगा थोड़ा सा मैथ्स. तो जो आपका अलजेब्रिक इक्वेशन है वो लिखने के लिए आप बाइनरी ट्री यूज़ करते हो तो उसे क्या बोलते हैं, एक्सप्रेशन ट्री. इट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ अ बाइनरी ट्री, मतलब एप्लीकेशन है किसका, बाइनरी ट्री का. अ बाइनरी एक्सप्रेशन ट्री कैन बी यूज टू रिप्रेजेंट, मतलब ये यूज करते हैं किसके लिए, टू रिप्रेजेंट एन एक्सप्रेशन कंटेनिंग ऑपरेंड एंड ऑपरेटर. कोई भी आपका इक्वेशन रहता है उसमें क्या रहता है, ऑपरेंड रहते हैं, दैट इज द थिंग्स ऑन विच ऑपरेटर आर ऑपरेटेड, मतलब आपका डेटा, मतलब आपकी इन्फो या फिर आपके वेरिएबल, उसको बोलते हैं ऑपरेंड. एंड ऑपरेटर, सॉरी ऑपरेंड, डेटा, इन्फो, वैल्यू, इनके ऊपर क्या एक्शन करनी है ये चीज़ रहती है ऑपरेटर या फिर इंस्ट्रक्शन या फिर कोड. सो अब बाइनरी एक्सप्रेशन किससे बनता है, 2 चीज़ों से बनता है. क्या करना है, किस पे करना है, ऑपरेटर प्लस ऑपरेंड. सो देयर ट्री, अ ट्री, दिस ट्री विल बी अ स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री. अ रूट कंटेन्स द ऑपरेटर्स टू बी अप्लाइड टू द रिजल्ट, मतलब रूट में क्या रहेगा, ऑपरेटर क्या करने हैं, द ऑपरेंड्स आर इन द लीफ नोड. लीफ नोड मतलब वापस से आपका कंसेप्ट थोड़ा क्लियर हो जाएगा. लीफ नोड मतलब क्या है, एंडिंग नोड, उसके बाद कोई चाइल्ड नहीं रहता, वैसे वाले नोड. लीफ नोड को पेरेंट तो रहते हैं लेकिन लीफ नोड को चाइल्ड रहते हैं क्या, नहीं. इन दिस केस विच आर लीफ नोड्स, ए बी एंड सी, बराबर है. अभी इसका एक्सप्रेशन कितना सिंपल है, देखो ए और बी को कंसिडर करो, उसके बीच में सिंबल कौन सा है, मल्टीप्लिकेशन का. सो आंसर आएगा आपका ए मल्टीप्लाई बाय बी. ठीक है, मल्टीप्लिकेशन हो गया. अभी जाना है एक स्टेप ऊपर. पेरेंट चाइल्ड, पेरेंट नोड क्या बोलता है, क्या ऑपरेशन करना है, और लीफ नोड क्या बोलता है, किसके ऊपर ऑपरेशन करना है. सो ए इंटू बी नाम का एक रिजल्ट अलग से आ गया, उसको क्या करना है, प्लस करना है, एडिशन करना है. वो एडिशन करने वाला कहाँ पे, उसके पेरेंट में, बट यहाँ पे वो कौन है, रूट नोड है. तो रूट नोड पे बोल दिया कि उसका एडिशन करो, बट किसके साथ करना है, तो वो सी के साथ. सो योर फाइनल एक्सप्रेशन ट्री विल बी ए इंटू बी, देन इसी को ऐड करो किसके साथ, सी के साथ, बिकॉज सी इज द लीफ नोड. ओके, अगेन वी विल सी वन मोर एग्जाम्पल.
कंसिडर दिस, रूट में क्या है स्टार, दैट इज मल्टीप्लिकेशन। लेफ्ट में कौन है प्लस, राइट में कौन है माइनस, प्लस के लेफ्ट में कौन है ए, प्लस के राइट में कौन है बी। पूरे राइट साइड पे जाओ तो माइनस के नीचे भी क्या है प्लस, लेकिन प्लस हर एक ऑपरेटर के नीचे कोई ना कोई ऑपरेंड रहेगा ही, नहीं तो कुछ काम का है क्या नहीं। और राइट में कौन है ई। यहाँ पे अच्छे से देखो ए बी सी डी ई और डीज आर लीफ नोड्स, ये एंडिंग में है बराबर है, तो ये एंडिंग में है तो ये लीफ नोड है, उनके ऊपर ऑपरेट करने वाला ऑपरेटर ऊपर के साइड पे है। सो इन दिस केस क्या होगा, सबसे पहले एक्सप्रेशन देखो ए प्लस बी, दिख रहा है आंसर सामने आपके है ए प्लस बी, ये एक साइड का एक्सप्रेशन हो गया। अलग करो थोड़ा, सी प्लस डी आएगा इसका बराबर है, सी उसका पेरेंट नोड कौन है प्लस, और राइट साइड पे कौन है डी। लेकिन ये सबको क्या करना है माइनस करना है, किसके साथ, ऊपर माइनस तो किया है, क्यों माइनस किया, बिकॉज पेरेंट नोड इज इंडिकेटिंग माइनस सिम्बॉल, बट ये किसके साथ माइनस करना है ई के साथ। सो ब्रैकेट में क्या आएगा सी प्लस डी माइनस ई, दोनों इक्वेशन हो गई। राइट हैंड साइड पे हो गया सी प्लस डी माइनस ई, एंड लेफ्ट हैंड साइड पे क्या हो गया ए प्लस बी। लेकिन इनका पेरेंट नोड कौन है सबका, डेट इज रूट नोड यहाँ के लिए, तो मल्टीप्लिकेशन स्टार। सो ओवरऑल एक्सप्रेशन विल बी ए प्लस बी इंटू राइट हैंड साइड पे क्या था सी प्लस डी, जो एक एक्सप्रेशन बन रहा था उसके ऊपर था माइनस, और माइनस क्या करना था आपको ई करना था, समझा। इतना सिंपल है एक्सप्रेशन ट्री के। एक्सप्रेशन ट्री में क्या करते हैं हम लोग, अलजेब्रिक इक्वेशन को इन टर्म्स ऑफ स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री करते हैं, या फिर बाइनरी ट्री में लिखते हैं। लेकिन वो बाइनरी ट्री कैसे होना चाहिए, स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री होना चाहिए, ऊपर रहेंगे उसके ऑपरेटर और नीचे के साइड पे रहेंगे उसके लीफ नोड। ये लेक्चर यहाँ पे स्टॉप करके वापस से दूसरा लेक्चर में थोड़े टाइम में पोस्ट करूँगा। अभी के लिए इतना पढ़ो, कौन सा वाला, तो आपका पोस्ट ऑर्डर एंड एक्सप्रेशन ट्री, बिकॉज कभी कभी अपलोडिंग में प्रॉब्लम आता है। सो इसके बाद थोड़े टाइम के बाद नेक्स्ट वाला लेक्चर में कंटिन्यू करूँगा। थैंक यू।